علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں. زیادہ سے زیادہ جس طرح ابھی صداقت نے بتایا کہ وہ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی، اور اس میں آ کے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا. 62 کروڑ نہیں صداقت، 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے. تو کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ اب عوام کے لیے کام ہو رہے ہیں جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہے ہیں. پہلی چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں اتنی دیر سے کسی نے یہ سوچا کہ سارے علاقے میں یہاں اور اتنی آبادی بڑھ چکی ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نتھیا گلی میں نے دیکھا ہوا ہے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ٹائپ جس میں ایک ہے چھوٹا سا، لیکن وہ ایک ڈاکٹر وہاں، اور اتنی ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور اب اتنا زیادہ ٹورسٹ آتا ہے اور یہاں اتنی زیادہ آبادی ہے تو اس کے لیے تو وہ کافی نہیں تھا. تو یہ بڑا اچھا کیا کہ 370 کنال کے اوپر، اور وہ بھی اس علاقے میں 370 کنال ہونا بہت جگہ تھی. تو شکر ہے کہ کسی نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک جنرل ہاسپٹل بنے جو عوام کی خدمت کرے. تو یہ میں اگر صداقت آپ کی یہ سوچ تھی تو میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس پہ کسی نے سوچا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ عوام کی، دیکھیں عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے، پھر ان کے لیے تعلیم دے، کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں، اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، اس کو کوئی ہنر سکھا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. اور جتنا جتنا آپ ایک انسان پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنی زندگی اوپر لے جا سکتا ہے. اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اب تو ایسے ایسے کورسز ہیں کہ بنیادی تعلیم ہو بچے کو میٹرک کی تو اس کو اب 6 مہینے کا کورس کروا دیں تو وہ ایک دم اپنے گھر اور اپنے لیے بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کی آپ نے میرے سے اوپننگ کروائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب ایک فیوچر ہے. قوم وہ عظیم قوم بنتی ہے جو آگے کا سوچتی ہے. جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے کفار کے قیدی پکڑے گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیدی کو واپس کرنے سے پیسے ملتے تھے. اس وقت مسلمانوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی امت تھی. تو انہوں نے تب کہا کہ اگر جو بھی مکے کا قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے اس کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس جا سکتا ہے. تو ایک بڑی سوچ، ایک عظیم لیڈر کی سوچ تھی، آگے کا سوچ رہا تھا. وہ اپنی ایک قوم کو عظیم قوم بنانے کا سوچ رہے تھے. تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی. تو یہ جو آج کسار یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے. اب جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کی فیوچر ہے. میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا. تقریباً سارے علاقوں میں جا چکا ہوں، قبائلی علاقے سے سارے پہاڑی علاقے، سارا سندھ، پنجاب، بلوچستان کے کئی علاقوں میں نہیں گیا لیکن وہ اتنا بڑا علاقہ ہے. لیکن بلوچستان بھی کافی میں نے دیکھا ہوا ہے. دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے ملک کو بخشی ہیں ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ہمیں پتا نہیں کہ اللہ نے اس ملک کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم سارا وقت اس کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ اس میں کسی چیز کی اس نے کمی نہیں چھوڑی. جو پاکستان کے اندر جس طرح کی مختلف ٹورزم ہے، وہ اگر صرف ہم ٹورزم کے اوپر زور لگا دیں تو ہم ٹورزم سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ جتنی بھی آج ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کے اس سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ کما سکتے ہیں. ہم ٹورزم سے ہی اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں.
ये इतना ज्यादा अल्लाह ने इस मुल्क को टूरिज्म में दिया, लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ टूरिज्म करवा के आके मरी में आके बस यहाँ रुक जाती थी हमारी टूरिज्म। वो मरी की इतनी ज्यादा आबादी, मैं जब यहाँ बचपन में आया करता था, वो मरी क्या था और आज ये मरी क्या बन गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप ही नहीं किया। हमारे इतने ज्यादा मरी और नथिया गली, ये सारे इधर से अगर आप पख्तूनख्वा की तरफ भी जाएं और आप गिलगित की तरफ भी जाएं, ये जो सारा इस इलाके के अंदर इतने ज्यादा मरी और नथिया गली बन सकते हैं, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं। क्यों जो आता था ये नथिया गली और गवर्नर हाउस, या वो ज्यादा से ज्यादा नथिया गली गया और उधर का गवर्नर हाउस। किसी ने तो देखा ही नहीं है इस मुल्क में किस किस तरह के हमारे पास इलाके थे। तो अब ये पाकिस्तान बदलने वाला है, ये सारे इलाके अब डेवलप होंगे, क्योंकि हमारी जो टूरिज्म है वो पिछले 4-5 साल में हर साल दुगनी हो रही है टूरिज्म। अभी बाहर से लोग नहीं आ रहे, अंदर से ही पाकिस्तान की टूरिज्म तेजी से बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह क्या है? मोबाइल फोन। जो भी कहीं जाता है वो मोबाइल की तस्वीर ले लेता है अपनी, वो जब वो अपनी फेसबुक पे लगाता है, लोग देखते हैं, लोग सारे उधर पहुंच जाते हैं। तो यहां तो ये सारा इलाका खुलने लगा है और टूरिज्म एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ हम टूरिज्म डेवलप कर लें, हम अपने बैरूनी मुल्क के कर्जे वापस कर सकते हैं। और उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि अब तक टूरिज्म की हमें समझ ही नहीं है। मैं फिर से मिसाल देता हूं स्विट्जरलैंड की। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसका आधा है स्विट्जरलैंड, और उससे बहुत कम खूबसूरती है स्विट्जरलैंड में हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में तो आधे दुनिया के जो 10-12 सबसे ऊंचे पहाड़ है, आधे तो नॉर्दर्न एरियाज में हमारे। तो स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है, टूरिज्म को साइंस बनाया है। वहां इस तरह की जो हॉस्पिटैलिटी, जो टूरिज्म के लिए कोर्सेज होते हैं, जो आज कोसार यूनिवर्सिटी आप ये शुरू कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं वहां। वो समझते हैं टूरिज्म को। तो वो टूरिज्म से, अब जरा ये सुन ले, या वो $60 अरब कमाते हैं या $80 अरब कमाते हैं। सोचे 60 या 80 अरब डॉलर वो इलाका कमाता है जो आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया। हमने अभी डेवलप ही नहीं की टूरिज्म। ना हमें अंदाजा है, ना यह हॉस्पिटैलिटी में लोगों को पता है कि जब एक टूरिस्ट आता है उसको कैसे आपने रखना है, होटल्स में कैसे, ये जो पूरी साइंस है ये। तो ये बड़ा अच्छा कदम लिया आज पंजाब गवर्नमेंट ने इस इलाके को, जो सिर्फ अब तक, जिस तरह सदाकत अब्बासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर और बड़े बड़े लोग आके यहाँ मुफ्त ठहरते थे और उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च होता था टैक्स पेयर का, आज उसी को आपने एक कोसार यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और ये इधर से अब ये नौजवानों को ऐसा रोजगार मिलेगा, बल्कि रोजगार ही नहीं मिलेगा, आप अपनी टूरिज्म के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बना सकेंगे। और ये सारा इलाका, और ये जो बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप ये जो कनेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म ट्रेल कोटली सतिया तक, और वो नीचे, ये भी बड़ा अच्छा एक, क्योंकि आप इधर से प्रेशर उतारेंगे, नहीं तो सारे लोग बस यहां पहुंच जाते हैं मरी में। मरी और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना यहां और टूरिस्ट नहीं आ सकता, या जितनी ज्यादा पब्लिक आ जाती है वो तो चलने की जगह नहीं होती है। इसलिए जरूरत यह है कि और हम टूरिज्म के डेस्टिनेशन स्पॉट्स खोले, जैसे जैसे आप कोटली सतिया, उधर भी मैंने देखे बड़े खूबसूरत इलाके हैं, उधर भी हम खोल सकते हैं। और इधर से जब हम शुमाल की तरफ जाएंगे, आप उधर देखेंगे कि उधर भी सारा नॉर्दर्न एरियाज, या सारा ये जो पख्तूनख्वा जो सारा बीच में आता है, चित्राल तक, हर जगह के अंदर हम जबरदस्त इस तरह की जगह बना सकते हैं, ताकि हमारा टूरिज्म सिर्फ एक ही जगह ना आए, सारे इलाके में जाए। और अब हम सड़कें भी बना रहे हैं, स्वात मोटरवे बन गया, उससे सारा खुल गया, वो स्वात से लेके पूरा आगे तक, और अब वो तकरीबन चित्राल तक चला जाएगा, लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी, वो सब इलाका अब खुल जाएगा। तो जिससे सबसे बड़ी चीज के मुकामी लोगों का फायदा होगा।
जो लोगों को रोजगार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोजगार लेने के लिए, बल्कि टूरिज्म भी फायदा होगा, उस इलाके को भी फायदा होगा, और सबसे बड़ा रोजगार लेने के लिए मुकामी लोगों को फायदा होगा। और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो आपने सदाकत बात की कि इमरान इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स इमरान खान ने इकोनॉमिक्स नहीं बनाई, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी। और वो थी क्या? उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमजोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है। उन्होंने ये चीज साबित की थी। पहली दफा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी। रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर और गरीब तबके की, और जब ये रियासत करती है, अपने कमजोर और गरीब तबके की मदद करती है, तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर। फिर अल्लाह, सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से, और इज्जत और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमजोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पे। जब जितनी मैंने दुनिया देखी है, जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं, स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं, उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया है, वो अपने लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए, इसलिए वो खुशहाल है। तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है, वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए, उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, उन्होंने वो कदम उठाए, जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो कौम उन असूलों पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जो आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाही मची हुई थी। वहां पुलिस का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे। बड़े कोई 500 पुलिस वालों ने कुर्बानियां दी थी, शहादतें दी थी। लोग पेशावर से उठ उठ के आके इस्लामाबाद में जमीनें ले रहे थे। तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी, अब तो यूनाइटेड नेशंस UNDP ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने में सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था 5 सालों में। और अब जो UNDP की रिपोर्ट आई है, अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पख्तूनख्वा में हुआ था उन 5 सालों में, और अब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी, डेवलपमेंट की थी, वो पख्तूनख्वा ने की थी 2013 के बाद। और यही मेरा मॉडल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कि सारे मुल्क में हम इंशाअल्लाह अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे, इंसानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। हमारा जो मरकज होगा, हमारी जो मेन फोकस होगा, वो हमारे लोग होंगे, और खास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए। तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं, सारा जितना इलाका ये पीछे रह गया, इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है नौकरियां लेने के लिए, और यहाँ से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है। तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह कि इन इलाकों को हम डेवलप करें, ताकि यहाँ नौजवानों को अपने इलाकों में नौकरियां मिले, बजाय उनको अपना इलाका छोड़ के कहीं और दूर जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोसार यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह की तकरीब जो मरी में मुनक़िद की गई है, उससे खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कमज़ोर और गरीब तबके को ऊपर उठाया जाए।